हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास डी चॉपर स्टडी करने वाले हैं। क्लास डी चॉपर इज आल्सो कॉल्ड एज टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर। ओके, देखिए इसके नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर और टू क्वाड्रेंट चॉपर दोनों में अंतर है। टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर को हम क्लास डी के नाम से जानते हैं और टू क्वाड्रेंट चॉपर को हम क्लास सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ कम टू द सर्किट डायग्राम कि सर्किट डायग्राम हमारा इसका किस तरह होगा। सर्किट डायग्राम में अगेन हमारे पास दो चॉपर रहेंगे, है ना। इनपुट डीसी वोल्टेज रहेगा, ओके, और दो डायोड कनेक्टेड रहेंगे। दिस इज डायोड D2 एंड दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चॉपर CH2 and here chopper CH1. This chopper CH1 is connected in series with diode D1. This is D2. This is the switch. This is chopper CH1 and load is connected between these two chopper. The direction of current is considered from source to load. This is our load. Generally load is RL and the voltage across the output is with this polarity, plus at the left side and minus at the right side. So this is the actual circuit diagram with the input voltage Vs. Now come to the mode number 1. In mode 1, here chopper 1 and chopper 2 both are on at the same time. हम दोनों चॉपर को एक साथ ऑन करेंगे और उस समय हम देखते हैं कि हमारा सर्किट क्या होगा। What will be the circuit situation when the chopper 1 and chopper 2 both will comes in conduction state. So here this is chopper CS2 is on, here chopper 1 is on, and diode D1 and diode D2 will be reverse biased. So diode D1 and diode D2 will be reverse biased. This is chopper 1 and load is connected as usual its actual position. Now see here the direction of current flowing through the circuit when the CH1 and CH2 is on. So this is the direction from source to load, and the voltage developed across the load is also considered as positive, and the load is RL load. Here this is also open, this is also open, and the current will flow from source to chopper 1, chopper 1 to load, and then load to chopper 2, and then back to the source. So this current is considered clockwise current and it is also positive. This is output voltage. This is also considered clockwise as the current is considered, or we can say that it is also positive. Now the direction of current in this mode 1 from source to load, okay, and the both voltage and current are positive. Now come to the mode number 2. Remember, in mode 1 the load is inductive in nature. The load is RL load, and inductor store the energy. ओके, इंडक्टर में क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगी। यदि एनर्जी स्टोर होगी तो फिर इंडक्टर को डिस्चार्ज होना पड़ेगा। डिस्चार्ज होने के लिए हमें क्या लगेगा, मोड 2 की आवश्यकता पड़ेगी। नाउ कम इन द मोड 2, CH1 एंड CH2 बोथ विल बी ऑफ। ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और अब इंडक्टर के अंदर स्टोर एनर्जी क्या होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी। तो हम देखते हैं कि सर्किट हमारा किस तरह रहेगा। ये हमारा इनपुट वोल्टेज DC है और हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। सेकेंड मोड में डायोड D2 और D1 दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे।
चॉपर CH1 और CH2 दोनों ओपन हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको ऑफ कर दिया है ना। किसी भी चॉपर को थायरिस्टर डिवाइस को हम जब ऑफ करते हैं तो उसमें ऑफ करने के लिए हम कम्यूटेशन सर्किट को यूज करते हैं, जो कि कम्यूटेशन सर्किट मैंने आपको लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह हम इसको ऑफ करते हैं। नाउ लोड इज अगेन कनेक्टेड एज यूजुअल। ओके, नाउ remember here the load is RL load and inductor is storing the energy. Okay, now in second mode, when CH1 CH2 will be off, inductor will start releasing its stored energy, so the polarity across the inductor will be changed, so that the direction of the voltage also change. Now the current will get the path through diode D2, then source, then diode D1, then back to the load. So the direction of current flowing here, the direction of current is what? Anti-clockwise. So it is considered negative, and the output voltage is also anti-clockwise and it is negative. Anti-clockwise तो हम वोल्टेज को कहते नहीं हैं, it is not called anti-clockwise, but in the flow of the direction, as the current direction is changed, the voltage direction is also changed. So here voltage and current both are negative. Okay, voltage and current both are negative. This is the mode number 2. Now no, remember one thing, there is something mistake. The direction of current is the same. Okay, the incoming direction of the current, load current at the load, because we are drawing the output current, and direction of output current at the load is the same as in the previous case. So this is current is positive and voltage is negative. Okay, remember here, be careful because there is something confusion. The direction of current incoming at the load is still same as in the previous case, है ना। जो लोड पे आने वाले डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन है वो मोड नंबर 1 की तरह ही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आउटपुट करंट पॉजिटिव है बट आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव है। ठीक, अब इन दोनों मोड में हम ये देखेंगे कि हमारी वेवफॉर्म क्या बनेगी या फिर हमारा क्वाड्रेंट डायग्राम क्या बनेगा। तो आइए हम यहाँ पर क्वाड्रेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्वाड्रेंट डायग्राम में क्या मिलेगा। सो कम टू द क्वाड्रेंट डायग्राम। इन क्वाड्रेंट डायग्राम you have 4 axes, and on the horizontal axis you are taking output current. This is minus I0, this is plus V0, this is minus V0। और मोड नंबर 1 में देखेंगे हम वोल्टेज और करंट दोनों ही हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, और मोड 2 में देखेंगे करंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकिन वोल्टेज हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह मिल रहे हैं, जिससे हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हमारे पास 2 क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और क्वाड्रेंट पहले चेंज हो गए। क्लास सी में क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड था, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है। सो दिस इज द क्वाड्रेंट डायग्राम। नाउ ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। ड्रॉ द वेवफॉर्म। अब इसमें क्या क्या वेवफॉर्म आने वाली है या किस तरह हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करते समय देखिए, सर्किट में हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, आउटपुट करंट लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस सी इन द वेवफॉर्म। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज। एक्सिस आपको टाइम टी लेना है, हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। देखिए इनपुट मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इनपुट डीसी वोल्टेज है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए अब आप बात छोड़ दिए तो आप ड्रॉ कर देते हो। ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक्सिस टाइम ले लिया अपन ने,
ये हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा आउटपुट करंट, और ये हमारा सोर्स करंट, और लास्ट वन विल बी आवर एक्सेस टी रहेगा चॉपर करंट। तो ICH1 एंड ICH2, इस तरह हमारे पास ये एक्सेस हो जाएंगे आउटपुट वोल्टेज को, आउटपुट वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करने के लिए। सो सी हियर द इनपुट इज DC हियर। अब हम चॉपर को कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए क्या किया, हमने ऑन रखा है। देखिए ये ऑन है, तो इस टाइम को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, टी ऑन ड्यूरेशन। इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो मान लीजिए इतना ड्यूरेशन है जब मैंने ऑन रखा है और मुझे पॉजिटिव वोल्टेज मिला। ठीक है, अब आइए ठीक है, तो इसको मैं एक टाइम मान लेता हूं, इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं ना, और एक ऑफ ड्यूरेशन ले लेता हूं। तो दिस इज ऑफ ड्यूरेशन। तो टी ऑन और टी ऑफ हमें फिक्स रखना है, इतना ही डिस्टेंस, लगभग इतना ले लो। तो यह अगेन से हमारा टी ऑफ ड्यूरेशन हो जाएगा, और कुछ इतना ही डिस्टेंस, इतना यहाँ पे ले लीजिए, तो ये हमारा टी ऑफ ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखा आउटपुट वोल्टेज की डायरेक्शन सेकेंड मोड में चेंज हो गई है ना। जब हमारा इस समय जो क्या है, दोनों ऑफ है, तो ऑफ है मतलब दिस इज द टी ऑफ टाइम। ओके, सो यू विल गेट द नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन थाइस्टर, again chopper will be on, so this is the positive pulse. Again in the next cycle the thyristor chopper will be off, and this is the negative cycle. So remember, when chopper is on, voltage is positive, so I am drawing positive voltage, and when chopper is off, I am drawing negative voltage. Now see here how the output current will be drawn. In on duration it will goes like this, and in off duration inductor start discharging. For the mode 1 inductor is charging, for the mode 2 inductor discharging. Again come to the mode number 1, inductor is charging and inductor will discharging. Okay, so there are two level of current. This is the I1 level and this is the I2 level of current. Now come to the source current. Now see here, for the mode number 1 the output current, direction output current is comes from source to load, so that is positive. So here the source current is drawn as positive, and in mode number 2 the direction of current is what, anti-clockwise, opposite to the previous one. So it is drawn like this, goes in negative direction, एंड अगेन स्टार्ट, इंडक्टर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। देखिए यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो लेवल हो जाएंगे करंट के, क्या उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर से ये ऑन ड्यूरेशन है ना, ये पॉजिटिव आ गया, ये ऑन ड्यूरेशन में आ गया। तो ऑन ड्यूरेशन में आ गया तो फिर से इंडक्टर में सोर्स के थ्रू करंट फ्लो होगा, ऐसे इंक्रीज होगा, और फिर ऑफ ड्यूरेशन में फिर डिक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज होगा, और फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये किस तरह काम कर रहा है, देखिए ये जो ड्यूरेशन है बेसिकली ये टी ऑन ड्यूरेशन है ना, ये टी ऑन ड्यूरेशन है, और ये वाला ड्यूरेशन क्या है, टी ऑफ ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे इस चीज पे हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज अगेन आई एम ड्रॉइंग टी ऑन और दिस इज टी ऑफ। सो दिस इज द सोर्स करंट, वन टाइम यू आर गेटिंग पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, सेकंड हाफ। Okay, now draw the current through the chopper CH1 and CH2. What we observe, that current is only flowing for the first mode, because chopper 1 and chopper 2 is conducting. So I will draw the chopper current that will be very similar to the input, very similar to the source current, like this. Okay, and for mode 2 chopper does not work, does not conducting, it means the current through the chopper is 0, so it is 0. Now again for the mode number 1 chopper is conducting, and for the mode number 2 again it is 0. So in this way all the waveform and mode are explained here. I hope that you understood this concept. ये काफी
काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है तो उसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ, थोड़ा सा बताने में गड़बड़ हो गई, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हुई, करंट की नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें आउटपुट ड्रॉ करना पड़ा है। थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर। कुछ डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, थोड़ा इसको कम्युनिकेट करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट करिए। मैं काफी डीप में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि आप लोग इसको कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड्स से तो मैं काफी मोटिवेट होता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।